العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین المعصومین وقد قال اللہ فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مومنین کرام، یہ جو موضوع میں نے عنوان کیا تھا اپنی تقاریر کے لیے، یہ آج محرم سے کافی عرصہ پہلے امام کوثر صاحب میرے پاس آئے۔ میں یہ موضوع کبھی عنوان نہ کرتا اگر میں پہلے ایک محرم یہاں سائیوال میں پڑھ نہ چکا ہوتا۔ چونکہ میں پڑھ چکا تھا، مجھے یہاں کے حاضرین کا علم تھا، اس لیے میں نے یہ جسارت کی اور یہ موضوع عنوان کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ موضوع صرف یہیں پڑھا جا سکتا ہے اور کہیں پڑھنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، پڑھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی۔ اس میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے فکر کو سمجھنے سے پہلے قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اس کے فکر کو کیا سمجھیں گے؟ اور قرآن کو اس لیے نہیں سمجھا گیا کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے علماء کرام کو ایک مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ ہماری مجالس میں سنجیدہ سوچ آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جاتی ہے، لیکن اس سنجیدہ سوچ کو قائم رکھنے کے لیے آپ بھی اور ہم بھی مل جل کر اگر کوشش کریں اسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، 3 حروف ہیں۔ ایسے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں 84 ہیں تعداد میں، 84 مقطعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ان 84 مقطعات، حروف مقطعات میں بعض حروف بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اگر ان دہرائے جانے والے حروف کو علیحدہ کر دیا جائے تو باقی 14 حروف ایسے بچتے ہیں، 14 حروف ایسے بچتے ہیں کہ جو دہرائے نہیں گئے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بار بار جو دہرائے گئے حروف ہیں، 84 ہیں ٹوٹل حروف، کل کے کل حروف 84 ہیں۔ ان 84 میں کچھ حروف بار بار دہرائے گئے، 4 بار 5 بار دہرائے گئے، تو ان کو ایک سمجھا جائے۔ اگر ان کو ایک سمجھا جائے تو کل حروف 14 بنتے ہیں، دہرائے بغیر 14 حروف بنتے ہیں۔ یہ مقطعات جن کی سمجھ نہیں آتی، یہ حروف مقطعات جن کی سمجھ نہیں آتی، یہ 14 ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، یہ حروف 14 ہیں۔ جن کے بارے میں اندازے لگائے گئے، مفسرین نے اس پہ غور و خوض بہت کیا لیکن سمجھ کچھ نہ آیا۔ مثلا یہ الف لام میم ہے، اس کے بارے میں کسی سے آپ پوچھ لیجئے کہ جی الف لام میم کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہتا ہے یہ راز ہے، اسرار خداوندی ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ تو وہ 14 حروف جو ہیں وہ اسرار خداوندی ہیں جنہیں کوئی سمجھتا نہیں۔ وہ 14 حروف اسرار خداوندی ہیں جنہیں کوئی سمجھتا نہیں۔ تمام مفسرین عاجز آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں سوچ بچار کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ایسا معمہ ہے جو نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا
तो 14 हरूफ ऐसे हैं। हां, एक इंतजाम हो सका है कि इन 14 हरूफ को मुख्तलिफ तरतीबों के साथ मिलाया गया है। लोगों ने कोशिश की, साल हा साल कोशिश की। एक शख्स बैठ गया कि जी इन 14 हरूफ की तरतीब बना ली जाए। आप हैरान होंगे कि इन 14 हरूफ को मुख्तलिफ तरीकों से मुरत्तब किया गया, तरतीब दी गई, लेकिन कोई बामानी फिक्रा न बना सवाए एक फिक्रे के। इन 14 हरूफ को मुख्तलिफ सूरतों में तरतीब दिया गया मुसलसल, और साल हा साल तरतीब दिया जाता रहा। कोई फिक्रा भी इन 14 हरूफ से बामानी न निकल सका। सिर्फ एक फिक्रा नहीं, सिर्फ एक फिक्रा ऐसा इन 14 हरूफ से निकला जिसके कुछ मानी बनते हैं। और वो फिक्रा मोमिनीन कराम मैं उस वक्त सुनाऊंगा कि जब आप इंतहाई जोशीली सलवात पढ़कर मेरी हौसला अफजाई करें। आप सारे इल्म फहम लोग बैठे हैं। मैंने आपके सामने अर्ज ये किया कि ये मुक़त्तियात, हरूफ मुक़त्तियात जो हैं, इनके मानी नहीं हैं, इनका कोई मतलब समझ में नहीं आता। लोगों ने बड़ी कोशिश की, अलिफ लाम मीम के बारे में भी कोशिश की कि ये अलिफ लाम मीम दरअसल आले मोहम्मद है। अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद है। कोशिश तो की लोगों ने अपने तौर पर, लेकिन हमारे इमामों ने यह कहा कि इनके बारे में सोच विचार मत करो। इनका इल्म या पैगंबर को है और या हमें है। ये इसरार खुदावंदी है। हमें इल्म तो है, इसमें इन हरूफ में इसमें आजम मख्फी है, लेकिन उसका हमें इल्म है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो हमारा इल्म है जो रसूल से हम तक पहुंचा और हमसे आखिरी इमाम तक पहुंचेगा, वो हमारे लिए है, आपका उससे ताल्लुक नहीं, आप सोचें नहीं। लेकिन इंसान सोचता ही है। तो अलिफ लाम मीम के बारे में सोच के एक मुफस्सिर ने कहा कि ये अलिफ लाम मीम जो है, अलिफ लाम आल मीम मोहम्मद आले मोहम्मद है और इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह सोच विचार होती रही, लेकिन इस पे सोचना बेसूद है, क्योंकि इमामों ने कह दिया कि यार इससे आपका ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं आपसे कल भी अर्ज कर रहा था कि जो शख्स ये दावा करता है कि हस्बुना किताबुल्लाह, कि मेरे लिए अल्लाह की किताब काफी है, उससे ये कह दीजिए आपके लिए तो किताब काफी है, जरा ये हरूफ मुक़त्तियात का मानी तो समझा दीजिए, इनके मानी तो समझा दीजिए। अगर आपको इनके मानी नहीं आते तो इसका मतलब यह है कि किताब काफी नहीं है, किसी ऐसे के सामने जाना पड़ेगा जिनको इनके मानी आते हैं। और इमामों ने दावा किया कि हमें इनका मानी आती, ये हमारे लिए हैं, असल में मुखातिब हम हैं इन हरूफ मुक़त्तियात में। ये हरूफ मुक़त्तियात 84 हैं और 84 में से 14 ऐसे हैं कि जो बार बार दोहराए गए, लेकिन वो अलग अलग हैं और उनको नहीं दोहराया गया। 14 हरूफ हैं और वो 14 हरूफ वो हैं कि जिनके मानी समझ में नहीं आते, जो नाकाबिल फहम हैं, हमारी जहन की हदूद से आगे हैं, हमारे दायरा फिक्र से बाहर हैं, जिनसे हमारा ताल्लुक नहीं। ये 14 हरूफ हैं। इन 14 हरूफ को तमाम मुफस्सिरीन ने, तमाम मुहक्किकीन ने बड़ी कोशिश की, बड़ी काविश की कि इनमें से कोई फिक्रा बन जाए, कोई जुमला बन जाए। कोई जुमला नहीं बनता इनसे सवाए एक जुमले के। बस वही एक जुमला है जो बामानी है और इन हरूफ मुक़त्तियात से तरतीब दिया जा सकता है, और वो जुमला ये है कि सिरातुन अली हक़्क़ुन, सिरातुन अली हक़्क़ुन नुमस्सको हो, कि अली का रास्ता हक है, अली का रास्ता हक है। ये मैं तो दावा कर रहा हूं ना, आप खुद करके देख लें कि सिरात के जो वो हरूफ मुक़त्तियात हैं वो 14 हैं, और वो 14 मुझसे आप ये जो मैंने लफ्ज बनाए इन्हीं में हैं वो सारे। सिरातुन अली, ये कि अली का रास्ता हक़्क़ुन हक है, नुमस्सकुहु इसके साथ तमस्सक करो, इसके साथ
वास्ता रखो, इसके साथ रिश्ता रखो, इसके साथ ताल्लुक रखो कि यही रास्ता है जो हक का रास्ता है। बस नारा लगाने वाले का जज्बा सादिक, लेकिन जिन्होंने नारा लगाया उसके पीछे वो बहुत ढीला नारा था। ये बात बहुत बड़ी है। ये नारा हैदरी जो है ये भी कमाल जादू का नारा है, बड़ा मशहूर कुन नारा है। आप देख लीजिए कि इस नारे में एक साउंड सिस्टम है, इस नारे में एक निजाम में सौत है, निजाम में सौत है और उसमें एक आहंग है, आहंग है। आप कोई और नारा लगाएं, कोई और नारा लगाएं, ये सौती असर नहीं होता और इस तरह जिस्म जो है रोंगटे खड़े नहीं होते और इस तरह जज्बा पैदा नहीं होता। और इसमें आप कहें ना नाराए हैदरी, तो इसमें एक सम है, नाराए हैदरी में एक सम है और उसके साथ उठान है। जब आप आगे या अली करते हैं तो या अली में एक बुलंदी है, ऐसा लगता है कि इंसान बुलंद हो, ऐसा लगता है कि जैसा इंसान अपने मर्तबे में बुलंद होकर किसी बुलंद तर चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। या अली के नारे में ऐसा लगता। आपने कभी महसूस किया? तो बाद और लोग मैंने सुना कि उन्होंने कहा जनाब और नारे भी लगाया करें, और नारे भी तो हैं और अशखास हैं, शख्सियतें हैं, बड़ी शख्सियतें हैं। आप कोई नारा और लगा के देख लें, उनमें वो सौती असर ही नहीं है, वो उसमें वो हम आहंगी नहीं है। अगर हम लगाना चाहें भी तो वो एक इंतहाई फुसफुसा सा नारा हो जाता है, बेरौनक सा नारा हो जाता है। और कभी आप तजर्बतन वैसे घर में अकेले बैठे हुए आप कभी कोशिश करके देख लें और गैर मुतासिबाना तौर पर कोशिश करके देखें, आप यही महसूस करेंगे कि नारे हैं तो सिर्फ दो हैं, एक नारा तकबीर अल्लाह अकबर और दूसरा नारा सिर्फ यही है, नारा हैदरी। अब आप देखें कि नारे लगाते रहें हम। नारा ये हमारे पाकिस्तान की तहरीक में भी बड़े नारे थे और सब नारे हैं और बहुत अच्छे नारे भी हैं और उनमें बड़ा इंसान को एक यकीन और एतकाद पैदा होता है। लेकिन नारा हैदरी में जो मैंने आपको बताया कि ये या का लफ्ज और उसके साथ अली का लफ्ज, ये बड़ा अजीब सौती असर करता है। अब एक लफ्ज मैंने कह दिया अली, तो उस दिन मैं कहीं बस में सफर कर रहा था तो एक आदमी आया और उसने कहा कि ईसा की कहानियां पढ़ो, ईसा की कहानियां पढ़ो। एक रुपए में दे रहा था, सिर्फ एक रुपए में। तो मैंने कहा 1 रुपया तो कोई ऐसी बात नहीं, तो चलो रुपया दे दिया और इतनी सी गठड़ी उसने दे दी, सो पैक थी। तो वहीं बस में बैठे बैठे मैं देखने लग गया। तो जब मैंने उसमें देखा तो उसमें एक फिक्रा मुझे बड़ा अजीब लगा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया और सूली पे चढ़ाया गया तो यहूदियों ने तंज किया कि तुम तो खुदा की बादशाहत की बात करते थे कि खुदा की बादशाहत होगी, कहां है तुम्हारी खुदा की बादशाहत, कहां वो खुदाई बादशाहत है। तो जब बड़ा तंज किया और बड़ा जिच किया तो ईसा ने ये उस किताब में जो अभी जदीद प्रेस में जदीद लिखी गई है, इसमें कोई नई बात पुरानी बात नहीं है, उस किताब में लिखा था कि ईसा ने तंग आकर अपना सर बुलंद किया और कहा एलिया मेरी मदद कर, एलिया मेरी मदद कर। अब आपको शायद मालूम होगा कि हजरत अली का खुद अपना कौल है कि इब्रानी जबान में मेरा नाम एलिया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ईसाइयों ने अब तक इतनी गड़बड़ की, अपनी इंजील तक बदल दी, तहरीफ हुई, बहुत तब्दीलियां की, लेकिन ये फिक्रा अभी तक किसी न किसी तौर चलता आ रहा है कि एलिया मेरी मदद कर। तो जब हजरत ईसा ने फांसी के इस पर मसलूब होकर सलीब के ऊपर खड़े होकर एलिया मेरी मदद कर कहा, तो आज हम अगर मलंग लोग कभी इंतहाई जरूरत के वक्त, एक इंतहाई जज्बे के वक्त हम कह दें कि नारा हैदरी या अली मदद या अली उसको पुकार लें, तो किसी को क्यों तकलीफ हो।
किसी को क्यों तकलीफ हो। अब एक आदमी ने एतराज किया कि जनाब आप या अली मदद क्यों कहते हैं, या अली मदद क्यों कहते हैं। तो मैंने उसे कहा कि भाई बात यह है कि अल्लाह ने हमें इजाजत दी है कि हम उसकी पैदा करदा कुव्वतों से मदद तलब करें। मिसाल के तौर पर सूरज है, अल्लाह की कुव्वत है, उसकी रोशनी से आप मदद तलब करते हैं और उसकी रोशनी से आप नुसरत लेते हैं और उसकी रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। हवाओं को इस्तेमाल करते हैं, आप हवाओं को मदद के लिए पुकारते हैं। जब किसी जमाने में कश्तियां हवाओं से चलती थी तो लोग हवा के लिए पुकारते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो शिर्क कर रहे हैं। जैसे अल्लाह की दूसरी कुव्वतों से मदद लेना जायज है, इस तरह अली भी तो अल्लाह की एक कुव्वत ही है। आपने ये तो सुना होगा, ला फतह इल्ला अली, अब ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई जवान नहीं है अली जैसा और कोई तलवार नहीं है जुल्फिकार जैसी। और अब अली अगर अल्लाह की कुव्वतों में से एक कुव्वत है, कुव्वत अली, इसको मैं क्यों अल्लाह की कुव्वत कहता हूं, इसलिए कि जब भी आपके रसूल पर कोई मुश्किल बनी उसने अली को पुकारा और अली पहुंचा और मदद की, नुसरत की। ये कभी मौजू आया तो मैं नुसरत अली पर आपको बात करूंगा, लेकिन ये रिवायती बातें हैं। ये तो मुझे इस जवान के नारा हैदरी से ख्याल आया। नारा हैदरी जो है बुलंद करते रहा करें, उससे बीमारों को शिफा होती है, कमजोरों को ताकत मिलती है। क्योंकि यहां मैं बाज बूढ़े लोग देख रहा हूं, बूढ़े इस नारे को देखकर जवान होते हैं, बीमारों को शिफा मिलती है। अच्छा नारा है, बड़ी ताकत वाला नारा है, बड़ी कुव्वत वाला नारा है, ईमान का नारा है। इस नारे के साथ आपकी वाबस्तगी जो है वो एक मसलक से वाबस्ती को जाहिर करती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सिरातुन अली, ये अली का जो रास्ता है हक है और इसके साथ तमस्सक करो, इसके साथ अपना राब्ता रखो, इसके साथ। ये उन 14 मुक़त्तियात जो हैं उनसे सिर्फ यही एक बामानी जुमला बनता है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता था कि टोटल 513 आयात ऐसी हैं जो अहकाम के बारे में, कुरान में अहकाम के बारे में 513 आयात है। 513 आयात में से 113 आयात जो हैं वो सरीह अहकाम है, सिर्फ 113। 513 आयात में से सिर्फ 113 आयात सरीह आयात हैं, बाकी आयात गैर सरीह। वो जो हैं उनकी आप कोई भी तशरीह कर सकते हैं, वो मुशब्बिहात में से, और उसकी तशरीह तफसीर करना हर आदमी का काम नहीं है। वो सिर्फ कोई लोग उसकी तशरीह और तफसीर कर सकते हैं, और जो उसकी तशरीह तफसीर करते हैं उनके बारे में भी एक खास किस्म का मेयार कुरान ने दिया है। बस वही लोग उसकी तशरीह कर सकते हैं और तफसीर कर सकते हैं। जब 513 आयात अहकाम, जिनमें अहकाम दिए गए हैं, हुक्म दिए गए हैं, अहकाम की आयात 513 में से सिर्फ 113 जो है वो सरी हैं, बाकी गैर सरी आयात हैं। तो उससे यही नतीजा निकला कि वो गैर सरी आयात हैं अहकाम, और अगर उनको कोई मुक्तदर आदमी, मुस्तनद आदमी उसकी तशरीह और तफसीर नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि गलती कर रहा है, एक हुक्म इलाही को गलत तफसीर दे रहा है, गलत तशरीह दे रहा है, और उसको हक ही नहीं पहुंचता कि उसकी तशरीह और तफसीर करे। तो फिर ऐसे में किसी का यह कहना कि हस्बुना किताबुल्लाह, कि अल्लाह की किताब हमारे लिए काफी है, तो उन 513 में से सिर्फ 113 तो सही हैं। बाकी आयात के बारे में फिर किसी के पास जाना पड़ेगा कि जो जानता होगा। और जिसने ये कहा था, नाम में लेना मेरी आदत नहीं, आप समझदार लोग हैं, जिसने ये कहा था हस्बुना किताबुल्लाह, उसी ने ये कहा था कि अगर किसी ने ये कहा कि रसूल वफात पा गए हैं तो मैं तलवार के साथ उसका सर कलम कर दूंगा,
तो फिर उसी के एक दोस्त ने उसको समझाया कि तुमने कुरान को ठीक पढ़ा नहीं है, तुम्हें कुरान समझ में नहीं आया। तो उसी दोस्त ने उसको कुरान समझाया। तो जो खुद मोहताज है फहम का, जो खुद मोहताज है समझाए जाने का, वो खड़ा हो जाए और कहे अल्लाह की किताब मेरे लिए काफी है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई अनपढ़ आदमी कह दे कि केमिस्ट्री की ये किताब मेरे लिए काफी है, समझता है नहीं और उस तुम्हारे लिए क्या काफी है। पहले समझो, पहले अफहाम पैदा करो, पहले तफहीम पैदा करो, फिर दावा करो। एक ऐसी किताब जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, उसके बारे में आप कहते हैं काफी है, ये आपके लिए तो खसूसन काफी नहीं है। आपके लिए तो खसूसन काफी नहीं है क्योंकि आप जानते नहीं हैं। किसी और के लिए काफी हो तो हो, आपके लिए तो इसलिए काफी नहीं है कि आपको तो दुरुस्त किया जाता रहा मुसलसल, और आपने गलतियां की, और फिर आपने बार बार गलतियां की, और गलतियां करने के बाद कहा कि अगर कोई ना होता तो कोई हलाक हो जाता। कहा कि अगर कोई ना होता तो कोई हलाक हो जाता। तो अब इसका मतलब यह है कि आपको हलाकत से बचाने, इल्मी हलाकत से बचाने वाला इंसान और है। आपको इल्मी हलाकत से बचाने वाला कोई इंसान और था, कोई शख्सियत और थी जिसने आपको इल्म के जरिए, अपनी इल्मी बर्तरी के जरिए से आपको बचा लिया। हलाकत से मुराद ये नहीं कि जिस्मानी हलाकत, यहां जिस हलाकत का जिक्र हो रहा है वो ज़हनी हलाकत है, शऊरी हलाकत है, अकली हलाकत है, इल्मी हलाकत है। सलवात पढ़िए। मोमिनीन कराम, एक बात तो मैं ये आपको समझाना चाहता था। दूसरी बात जो मैं अब इस वक्त जिस मौजू का आगाज कर रहा हूं, वो एक और बात भी समझने वाली है। असल में कुरान को समझ लेने के बाद फिर फिक्र कुरान पे हम चले जाएंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है। असल में कुरान की समझ आ जानी चाहिए कि कुरान में कहां कहां वो मकामात हैं कि जहां पर बड़े बड़े ठोकर खा जाते हैं, उनको समझ लेना चाहिए। एक और बात वो है हदीस कुदसी और कुरान पाक की आयत, इनमें फर्क क्या है। हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम है, लेकिन वो कुरान में शामिल नहीं, वो कुरान का हिस्सा नहीं। कुरान और हदीस कुदसी में फर्क है। अब इस फर्क को समझना चाहिए। वो भी अल्लाह का कलाम और कुरान भी अल्लाह का कलाम। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क मोमिनीन कराम एक मिसाल से समझ में आ सकता है। आप किसी इंसान को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप शाह साहब के पास चले जाएं और उसे कह दें कि हम फलां जगह पे मिले थे और ये पैगाम आपने मुझे काम जिम्मे लगाया था, वो काम हो गया। ये आपने पैगाम दिया, पैगाम मेरा है, आपको मैंने बताया, आपको सिर्फ मतलब बताया। अब आपने इसी पैगाम को उस शाह साहब तक पहुंचाना है और वहां जाके कहना है कि नकवी साहब ये कह रहे हैं कि अब अपने अल्फाज में, वो पाबंद नहीं है उन अल्फाज का, वो उन अल्फाज का पाबंद नहीं जो मेरी जुबान से निकले। वो उसी मतलब को अगर बिल्कुल मतलब को वहां जाके कह दे, अपने अल्फाज में भी बेशक कह दे, लेकिन मेरा जो मफहूम है, जो मेरा इंदा है, जो मेरी मर्जी है, जो मेरी मंशा है, उसको अगर उस तक पहुंचा दिया तो उसने हक के सफारत अदा कर दिया। लेकिन अगर आप एक खत लिख के दे दें तो खत को वो रस्ते में फाड़ दे और उस खत के मजमून को अपने अल्फाज में जाके कह दे तो उसने सफारत के आदाब को पूरा नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ पैगाम ऐसे होते हैं कि जिनके अल्फाज बड़े अहम होते हैं, उनके अल्फाज को बदला नहीं जा सकता, और कुछ पैगाम ऐसे होते हैं कि वो पैगाम आप दे देते हैं, उस पैगाम को वो अपने अल्फाज में जाकर वहां पेश कर देता है। तो अब पैगाम तो दोनों मेरे हैं। या इस बात को एक और मैं मिसाल से बता सकता हूं कि मैं कहूं कि जनाब आप फलां शाह साहब से कह दें कि आपने फलां होटल पर बैठे हुए मुझसे कहा था कि
फलां दुआ फलां बीमारी के लिए आप मुझे लिख भेजेंगे, वो बराए करम आप लिख भेजें, आपने मुझे कहा था। तो वो दुआ ये है, ये शाह साहब से कह दें कि वो ये दुआ पढ़े। अब पैगाम क्या है? पैगाम में एक तो वो इजाजत है जो मैं उस पैगंबर को दे रहा हूं, उस शख्स को दे रहा हूं कि तुम जाकर ये बात अपने तौर पर कह सकते हो, वो होटल वाली बात कि आपको शाह साहब होटल पे मिले थे और ये वक्त था और आपने कहा था कि एक दुआ दे दी जाए, लेकिन जो दुआ लिख के मैं दे रहा हूं उस दुआ में रद्द बदल वो नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? उस दुआ में वो रद्द बदल नहीं कर सकता, दुआ वैसी की वैसी बताएगा, लेकिन वो पहले वाले फिक्रों में वो जो मर्जी है वो कह दे, उनमें अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, अपना फिक्रा बना सकता है, उसमें कोई तब्दीली ला सकता है, लेकिन वो जो दुआ में लिख के दे रहा हूं या दुआ कह रहा हूं उसमें रद्द बदल नहीं कर सकता। बस अब यही बात आप समझ लें कि हदीस कुदसी अल्लाह का कलाम तो है, लेकिन मनशाए एज़दी को मलक के जरिए, फरिश्ते के जरिए रसूल तक पहुंचाया जा रहा है। रसूल तक पहुंचाने के लिए अल्फाज की पाबंदी नहीं, लेकिन मनशाए एज़दी को रसूल तक पहुंच जाना चाहिए। अल्फाज चाहे कुछ भी कह दिए जाएं, लेकिन कलाम इलाही जो हमारे कुरान का हिस्सा है, इस कलाम इलाही में कोई रद्द बदल नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल उस दुआ की तरह है कि जिस दुआ में तब्दीली नहीं की जा सकती, और इसको बिल्कुल मिनोअन वहां जाके पहुंचाना होगा और उसमें एक जेर जबर का फर्क नहीं करना होगा। बस यही है। कुरान जो है, कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं, जो अल्लाह ने फरमाए वो अल्फाज हैं, लेकिन हदीस कुदसी जो है, अल्फाज मुमकिन है अल्लाह के न हों, लेकिन मतलब अल्लाह का है और मंशा अल्लाह की है, मफहूम अल्लाह का है। इन दोनों में बस कितना फर्क है, आपने समझ लिया। अब यहां पे मैंने एक जोर दिया एक चीज पर कि अल्फाज अल्लाह के। आज मजमा बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा दिल करता है कि मैं आपसे ये लफ्ज का मतलब समझ लूं कि लफ्ज क्या होता है, लफ्ज क्या होता है। अभी मैं आपको या अली के बता रहा था कि या अली, तो ये जो लफ्ज है या अली, ये कैसे मेरी जुबान से निकलता है। यहां मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं, यहां मेरे गले में एक सिस्टम है कि जिसमें से हवा मेरी जबान घुमाती है हवा को, और हवा को कंट्रोल करती है, और कभी दांतों के साथ लगती है, कभी हल्क के साथ लगती है, कभी दाएं तरफ लगती है, और वहां पर वो हवा को घुमा के उन वोकल कॉर्ड्स में से आवाज निकलती है, और उस आवाज को कंट्रोल करती है जुबान, और कंट्रोल करके उस हवा को देती है, उसमें से आवाज निकलती है, और उस आवाज में से अल्फाज बनते हैं। जब आप मीम कहते हैं तो और लफ्ज बनता है, नून कहते हैं तो और लफ्ज बनता है। वहां जबान की जो तरतीब है वो भी बदलती है, उससे हवा में कंट्रोल भी बदलता है तो लफ्ज भी बदलता है। लफ्ज असल में हवा है, असल में हवा है जिसे कंट्रोल करके बाहर की तरफ फेंका जाता है, उससे आवाज निकलती है। बात समझ में आ रही? अब अल्लाह, मैंने अभी एक फिक्रा यूं ही गैर शऊरी तौर पर कह दिया कि अल्लाह के अल्फाज होते हैं वो, तो लफ्ज तो निकलता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जब मैं नून कहूंगा तो अपने मुंह को एक खास सूरत में बनाऊंगा, जबान को एक खास सूरत में लेके दांतों से मस करूंगा, और फिर नून का लफ्ज निकलेगा, और उससे मीम का लफ्ज मेरे होंठ खास तरीके से मिलेंगे, और फिर उसमें से मीम का लफ्ज निकलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह को तो मुंह ही नहीं, अल्लाह की जबान ही नहीं, अल्लाह के दांत ही नहीं, तो फिर अल्फाज कैसे आ रहे हैं? तो अल्फाज कैसे आ रहे हैं? अल्लाह ने वो अल्फाज जो कहे, अब मैं बार बार इसरार कर रहा था कि वो अल्फाज ही अल्लाह के होते हैं, वो कलाम ही अल्लाह का होता है। तो लफ्ज अगर आपने कह दिया, लफ्ज कह दिया, तो फिर इसका मतलब यह है कि अल्लाह का जिस्म मानो, और अल्लाह का जिस्म आपने माना तो आप तो शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह का जिस्म ही नहीं है। इसी बहस को यहां रोककर मैं एक और वाक्य की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं। मूसा दौड़ता हुआ गया कोह तूर पर,
ایک درخت میں سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں. سمجھنے والی بات ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. درخت کہ میں تمہارا رب ہوں. یہ آواز بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کی آواز تھی. لیکن درخت کا منہ نہیں، درخت کے دانت نہیں، درخت کی زبان نہیں. درخت میں سے یہ آواز کیسے نکلی؟ درخت کے پاس تو وہ نظام ہی نہیں ہے. درخت میں تو وہ نظام ہی نہیں ہے. اور پھر اگر یہ بات اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے تو ڈائریکٹ ہی کہہ دے، درخت کے واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر درخت میں سے آواز آ رہی ہے تو نظام ہی نہیں ہے اس میں، اس میں نظام ہی نہیں ہے. تو درخت میں سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں. اب درخت تو کہہ نہیں رہا کہ میں تمہارا رب ہوں. اگر موسیٰ یہ سمجھتا کہ یہ درخت کہہ رہا ہے تو درخت کی پرستش شروع کر دیتا. لیکن موسیٰ کو بھی معلوم ہے کہ درخت نہیں کہہ رہا، درخت کے بالا تر کوئی ہستی ہے، ذات ہے، وہ کہہ رہی ہے. یہ الفاظ ہی اسی کے ہیں. پھر ایک اور علمی نکتہ اس میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ موسیٰ نے گفتگو کی درخت کے ساتھ اور کہلایا کلیم اللہ. بات کر رہا ہے درخت کے ساتھ، بات کر رہا ہے درخت کے ساتھ اور کہلاتا ہے کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا. تو پختہ بات ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ ہوا، آواز اللہ کی تھی، الفاظ اللہ کے تھے. تو وہ درخت کو کیوں وسیلہ بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الفاظ اللہ کے ہو سکتے ہیں، الفاظ اللہ کے ہو سکتے ہیں. اللہ قادر المطلق ہے، وہ الفاظ کو خلق کر سکتا ہے. الفاظ اس کے مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہیں. الفاظ مخلوق ہیں. اس طرح کلام مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. اللہ پہلے موجود ہے، کلام بعد میں آیا. اللہ پہلے موجود ہے، الفاظ بعد میں آئے. مخلوق ہیں. اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ الفاظ کو خلق کر سکتا ہے. اللہ الفاظ کو خلق کر سکتا ہے. مخلوق جو ہوئے الفاظ، مخلوق جو ہوئے الفاظ. تو اب جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول گئے معراج پہ، جب رسول گئے معراج پہ اور باتیں کی اللہ کے ساتھ، باتیں کی اللہ کے ساتھ، اور جب باتیں کر بات سمجھنے والی ہے، بات سمجھنے والی ہے. بار بار شک پڑتا تھا کہ یہ آواز سنی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن جو شک پڑتا تھا کہ یہ آواز سنی ہوئی معلوم ہوتی ہے، ساتھ ہی جھجک جاتے تھے کہ یہ آواز اگر سنی ہوئی ہے اور وہی آواز ہے جو میں جانتا ہوں تو وہ کہاں اور میں کہاں، وہ کہاں اور میں کہاں. اور جب شیعہ یہ واقعہ دہراتے ہیں تو بعض سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی شرک کر رہے ہیں. جب شرک کر رہے ہیں تو جب یہاں پہ آپ کہتے ہیں شرک کر رہے ہیں، اللہ تو درختوں سے کلام کروا دیتا ہے. اللہ تو درختوں سے کلام کرا دیتا ہے. جب درخت سے کلام ہو تو شرک نہیں ہے، جب علی سے کلام ہو تو شرک ہو گیا. مومنین کرام، اگر آپ لوگ کبھی توجہ فرمائیں تو بڑی باتیں ہیں جو کلام الہی میں سمجھ آتی ہیں، بڑی باتیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں. صرف کبھی آپ تعصب کو ہٹا کے، تعصب کے جالے کو ہٹا کے، تعصب کی گرد کو ہٹا کے اپنے روح کے شیشے میں اگر آپ عکس دیکھیں تو آپ کو بڑی باتیں سمجھ میں آئیں. اب علی کی بات آئی اور آپ نے نعرے بھی لگائے تو مجھے ایک جذبہ سا آ گیا ہے اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا. واقعہ یہ ہے
کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. ہماری تاریخ، اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا محقق قرآن اور مفسر قرآن سمجھا جاتا ہے، قرآن کا بہت بڑا مفسر. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بڑا عظیم الشان مفسر قرآن حضرت علی کے پاس بیٹھا کہہ رہا ہے کہ یا علی مجھے کچھ قرآن سمجھاؤ. تاریخی بات کہہ رہا ہوں، یا علی مجھے کچھ قرآن سمجھاؤ. یہ شام کا وقت ہے، شام کی نماز انہوں نے پڑھی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں اور حضرت علی نے قرآن عبداللہ بن عباس کو سمجھانا شروع کیا. قرآن سمجھاتے 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 عبداللہ بن عباس حیرت زدہ اور علی بول رہے. شش در عبداللہ بن عباس منہ کھولے بیٹھا ہے، علی بول رہا ہے، وہ سن رہا ہے، علی بول رہا ہے، وہ سن رہا ہے. صبح کی اذان ہو گئی، صبح کی اذان ہو گئی تو چونک پڑا عبداللہ بن عباس اور کہنے لگا یا علی صبح ہو گئی. علی مسکرائے، علی مسکرائے اور اس نے کہا عبداللہ بن عباس اگر علی قرآن کی تفسیر کرے 70 سال گزر جائیں اور تفسیر ختم نہ ہو. اور پھر کہا کہ اگر میں تفسیر کرتا جاؤں اور کوئی لکھتا جائے تو 70 اونٹوں پر وہ تفسیر لادی جا سکتی ہے. میں اگر تفسیر کروں اور آپ سنو. پھر ایک وہاں پر ارشاد فرمایا حضرت علی علیہ السلام کا بڑا تاریخی جملہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، الحمد ہے، اور الحمد کا تمام خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با ہے، یعنی بے کا حرف ہے. اور بے کا خلاصہ جو ہے وہ نقطہ ہے جو تحت البا ہے، جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ ہے بے کا خلاصہ. اور عبداللہ بن عباس میں ہوں وہ بے کا نقطہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کہہ کیا رہے ہیں علی کہہ کیا رہے ہیں؟ علی کہہ یہ رہے ہیں، اب قرآن پر بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہ واقعہ سنایا. کہہ یہ رہے ہیں کہ کل قرآن کا اگر خلاصہ بے ہے اور بے کا خلاصہ بے کا نقطہ ہے تو میں ہی ہوں جو کل قرآن کا خلاصہ ہوں. یہ بات علی نے کہی، لوگوں نے سنی اور عبداللہ بن عباس نے بھی سنی اور دنیا سنتی چلی آئی اور ہزاروں یعنی تقریباً 1300 سال گزر گئے، 1300-1400 سال گزر گئے اور اس سارے عرصے میں یہ بات لوگ یہ بات سنتے رہے لیکن مطلب سمجھ نہ آیا. اب یہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب نہیں سمجھ آیا، مطلب اب آ کے سمجھ آیا دنیا کو، کائنات کو، اور مجھے خاص طور پر اب سمجھ میں آیا. ایک انگریز ہے، اس کا نام ہے ایڈورڈ کلائرڈ. اس نے ایک کتاب لکھی ہے سٹوری آف الفابیٹس، کہ حروف تہجی کی کہانی. اس نے کتاب لکھی ہے، بڑی مستند کتاب. اس میں اس نے کوشش کی ہے یہ بتانے کی کہ یہ الف کیسے بنا، بے کیسے بنا، جیم کیسے بنا، یہ کہاں سے آیا، یہ حرف کدھر سے آئے. اور اس نے بتایا کہ یہ پہلے یہ حرف جو ہیں یہ تصویریں ہوا کرتے تھے. حروف بنے کیسے، اس کی تاریخ وہ بتا رہا ہے کہ یہ حروف بنے کیسے، تو تاریخ بتا رہا ہے. اور اس نے کہا کہ اصل میں یہ پہلے تصویریں ہوتی تھی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، غار میں رہتا ہے، پرانے انسان کی بات ہے جب پہلے حروف بن رہے تھے، ابھی گفتگو بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، اشاروں میں گفتگو ہوتی تھی. ایک انسان ہے، وہ جا رہا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو جو کہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں یا کہیں باہر کشتی رانی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا مچھلیاں پکڑنے گئے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. تو وہ ان کو ایک اپنا ایسے سر بنا کے
उसके नीचे ऐसे एक सीधी लकीर और एक नीचे दो लकीरें बना के और एक लकीर को आगे करके और पीछे जो है एक ऐसा शोशा सा बना के, तो बताना ये चाहता है कि मैं तीर कमान लेकर जा रहा हूं, एक कदम आगे बढ़ा के एक हाथ पीछे करके बताया कि मैं शिकार पे जा रहा हूं तीर कमान लेके। तो उसने वो बनाया। अब वो लफ्ज बाद में के बन गया, अंग्रेजी का के। और के अगर आप कभी गौर से देखें तो ये वाकई इस तरह लगता है जैसे कोई बंदा कदम लेके चल रहा हो, के बन गया। इस तरह उसने एक एक हर्फ की बताई, अंग्रेजी के हरूफ की भी बताई, अरबी के हरूफ की भी बताई। और उसने उसमें ये बताया मसलन जीम है, जीम, तो जीम को उसने कहा कि ये ऊंट से मुशाबे है, और इब्रानी जबान में जीम ऊंट को कहते हैं। इब्रानी जबान में जीम ऊंट ही को कहते हैं, और जीम में वो जो बीच में नुक्ता है वो ऊंट वाला है, वो ऊंट के ऊपर है, ठीक है ना। और अरबी जबान में ऊंट को जमल कहते हैं, तो जमल भी जीम से है, जमल। आपको समझ आ रही ना बात? तो इस तरह उसने एक एक हर्फ का बताया। उसने शीन बताया कि ये शीन जो है असल में, और उसको अरबी में शजर कहते हैं, तो उसने भी कहा कि शीन असल में दरख्त है। तो दरख्त में दो परिंदे जो हैं वो दरख्त में बैठे हैं, एक उड़ रहा है, इससे ये शीन बना। इस तरह उसने मुख्तलिफ हरूफ का बताया कि कौन सा हर्फ कैसे बना। एक बड़ी दिलचस्प बात। और उस एडवर्ड क्लाइड ने, उसको कुछ पता नहीं इस्लाम का, उसको कुछ पता नहीं ये हमारी रिवायात का, वो एक अंग्रेज है, वो अपनी तहकीक कर रहा है। उसने बिल्कुल एक खुद मुख्तार तहकीक की, तहकीक करने के बाद आजाद तहकीक, और उसने ये नतीजा निकाला और हम लोगों ने पढ़ा और हम बहुत हैरतज़दा हुए। वो ये कहता है कि बे जो है, बे का हर्फ, बे है घर, बे क्या है? घर। और बे का जो नुक्ता है ये घर वाला है। आप समझे? अली ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा कि मैं बे का नुक्ता हूं। उस वक्त तो कह दिया, लोगों ने सिर्फ इसका यही मतलब समझा, सिर्फ इतना मतलब समझा कि अली ने यह कहा है कि मैं बे के नीचे नुक्ता हूं, यानी मैं पूरे कुरान का खुलासा हूं। पहले तो ये सीधी सादी बात ये समझ में आई। अब अलूम ने तरक्की की, इंसान ने तरक्की की, जहन ने तरक्की की, तहकीकात हुई, और फिर अली के मतालिब और वाज़े हुए कि अली न जाने और कितनी बातें कह रहा था इसी एक बात में। मुमकिन है इंसान आगे तरक्की करे और कोई और बात मालूम हो जाए और इसी बे के नुक्ते की कोई और शाखें निकल आए। तो अब तक जो है फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास को तो कह दिया ये फिक्रा। अब हमें समझ आया कि अली कह रहा था कि मैं जो हूं, मैं घर वाला हूं, मैं वो हूं जो अहलुल बैत कहलाने का मुस्तहिक है, मैं वो हूं जो घर वाला हूं, मैं गैर नहीं हूं, मैं घर के बाहर नहीं हूं, मैं घर के अंदर हूं। न सिर्फ घर के अंदर हूं बल्कि मैं घर का मालिक हूं, मैं बैत का मालिक हूं। क्यों घर का मालिक हूं? कि पैदा हुआ घर में जाके, जब घर में जाके पैदा हुआ तो अब एक बात कहना चाहता हूं कि वो कहलाता बैतुल्ला है, कहलाता बैतुल्ला है, अल्लाह का घर। और अली कह रहा है कि मैं घर वाला हूं, तो है अल्लाह मालिक उस घर का और कहलाता अली है घर वाला। एक बार सलवात पढ़ दीजिए। कुरान फहमी पे बात चूंकि हो रही है तो इन दोनों को साथ साथ रखना है जिक्र को। और वैसे भी कुरान और अली एक हैं, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, जुदा जुदा नहीं है। अब एक बात और जहन में आती है कि जिस तरह अली के बाज कलमात हैं, अली के बाज बयानात हैं जिनको उस वक्त लोग न समझे और बाद में समझे, इस तरह कुरान के भी कई कलमात हैं कि जिनको उस वक्त लोग न समझ सके और अब समझ में आ रही है। मिसाल के तौर पर एक अल्लाह ने अपने लिए खिताब तजवीज़ किया खुद कि मैं रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन हूं। अब ये एक बड़ी अजीब बात थी और अरब लोग बड़े बड़े मुफस्सिर हैरान थे कि ये मशरिकैन का क्या मतलब और मगरिबैन का क्या मतलब, यानी दो मशरकें और दो अब उस जमाने में तो साइंस ने तरक्की नहीं की थी। उस जमाने में इंसान का इल्म बड़ा महदूद था।
وہ بڑے پریشان ہوئے کہ مشرق تو ایک ہے اور مشرق کا واسطہ ہوتا ہے سورج کے ساتھ. مغرب اور مشرق جو ہے یہ شرق اور غرب جو ہے یہ اصل میں تو طلوع ہونا اور غروب ہونا ہے. تو مغرب جو ہے اس کا لفظ اور مشرق کا لفظ یہ تو اس کا تعلق ہے سورج کے ساتھ. سورج طلوع ہوا جدھر سے وہ مشرق کہلائے, سورج غروب ہوا جدھر وہ مغرب کہلائے. تو اب جب اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا, مشرقین مغربین, دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا, تو حیرت زدہ تھے وہ لوگ کہ یہ دو مشرقیں کیسی ہیں اور دو مغربیں کیسی ہیں. اب جب سائنس نے ترقی کر لی تو اب ہمیں سمجھ آئی اس بات کی کہ ہاں واقعی دو مشرقیں ہیں کہ ایک وقت میں زمین کے اس طرف سورج طلوع ہوتا ہے, تو جب سورج ادھر طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو زمین کی دوسری طرف سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں مغرب ہوتی ہے, یہاں مشرق ہوتی ہے. لیکن جب یہاں مشرق ہوتی ہے تو وہاں مغرب اسی وقت موجود ہوتی ہے. تو یعنی مغرب اس وقت موجود ہے اور یہاں مشرق موجود ہے. بیک وقت ایک مغرب اور ایک مشرق موجود ہیں, دونوں وقت میں ایک ہی لمحے میں ایک ہی وقت میں مغرب بھی موجود ہے, مشرق بھی موجود ہے. اور پھر جب وہاں مشرق ہوتی ہے تو یہاں مغرب ہوتی ہے, پھر ایک بار وہاں مشرق ہے یہاں مغرب ہے. اس کا مطلب یہ دو مشرقیں ہوئیں, دو مغربیں ہوئیں. تو اب ہمیں بات آ کے سمجھ آئی. تو قرآن جو 1400 سال پہلے لکھا جا رہا ہے, اگر وہ ایک امی نے لکھا ہے, ایک ان پڑھ نے لکھا ہے, ایک رسول کا اپنا ذہنی کارنامہ ہے, تو اس کو کیسے پتہ لگ سکتا تھا کہ یہ مشرقین اور مغربین, جو کہ بعد میں انسان نے بلوغت حاصل کرنے کے بعد سمجھا. صلوات پڑھیں. اب ایک اور بات, اب جو آپ مجھے بتا رہے ہیں تو اب ایک اور بھی مجھے ذہن میں فکر آ گیا. ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رب المشارق والمغارب ہوں. اب اور چکر ہے, وہ دو مشرق تو سمجھ میں آ گئے, دو مغرب سمجھ میں آ گئے. اب مشارق کا معنی بہت ساری مشرقیں اور بہت ساری مغربیں. اب یہ اور بڑی پریشانی ہوئی اس مفسروں کو, پہلے مفسروں کو. لیکن اب سائنس نے پھر ترقی کی اور پھر انسان کچھ سمجھنے بوجھنے لگا, تو سائنسدانوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک سورج نہیں ہے, ایک سورج نہیں ہے, کائنات میں کئی سورج ہیں آگے, کئی سورج, بے شمار کروڑوں سورج ہیں آگے پڑے ہوئے, اور ایک ایک سورج اس سورج سے کروڑوں درجہ گنا, کئی کروڑوں گنا بڑا ہے. تو اب وہ جتنے سورج ہیں وہ بھی تو کہیں طلوع ہو رہے ہیں اور کہیں غروب ہو رہے ہیں, تو ان کی بھی کئی مشرقیں ہیں اور کئی مغربیں ہیں. تو کروڑوں سورجوں کی کروڑوں مغربیں ہیں اور کروڑوں مشرقیں ہیں. تو اس لیے رب المشارق والمغارب, جہاں جہاں سورج ہیں لا متناہی, ان کی جتنی مشرقیں, ایسٹ اینڈ ویسٹ, جتنی بھی مشارق اور مغارب ہیں, ان سب کا رب میں ہوں, ان سب کا جو ہے پیار پوس کر بڑا کرنے والا میں ہی ہوں. رب نے اپنے آپ کو کہا. صلوات پڑھیے. آپ سے ایک بات اور یہاں کہنے کو جی چاہتا ہے. میں نے ابھی ایک فکرہ کہا تھا اور آپ نے بڑی توجہ فرمائی تھی کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں. جس طرح قرآن کے معنی آہستہ آہستہ سمجھ میں آتے ہیں, اس طرح علی کے معنی بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آتے ہیں. ایک جگہ ایسے ملنگ آدمی ہوں, کسی جگہ تقریر کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ میں تو طالب علم ہوں, ابھی عالم نہیں ہوں. جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے, تھوڑا بہت جو پڑھا ہے, جو سنگریزے بحرے علوم کے کنارے میں نے چنے ہیں چند, ان سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن اگر آپ کبھی خود پڑھ رہے ہوں تو قرآن کا ایک سٹائل ہے, قرآن کا ایک انداز ہے, قرآن کا ایک معیار ہے. اگر فرض کیجئے آپ کو کوئی ایک آیا پاک کوئی بیچ میں سے نکال کے سنا دی جائے تو آپ یکدم کہیں گے, اگر آپ حافظ نہ ہوں پھر بھی آپ اس آیت کے مزاج سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کلام الہی ہے, کلام الہی. تو اب قرآن کے بارے میں نے کہا کہ قرآن کو اگر پڑھا جائے, اذان ہو رہی ہے, میں
उस तकरीर में ये कहा कि कुरान को अगर मुसलसल पढ़ा जाए तो कुरान की ज़बान और कलाम का एक ख़ास अंदाज है, और अगर नाजुल बलागा आप पढ़ें तो उसका भी एक ख़ास अंदाज है, एक स्टाइल है, और वो अंदाज इतना मुशाबे है, इतना मिलता जुलता है कि आदमी बाज़ औक़ात हैरत ज़दा होकर शक में पड़ जाता। ये मैंने उस तकरीर में कहा। तो जब मैं तकरीर करने के बाद अपने रिटायरिंग रूम में गया तो वहाँ कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा, मौलाना आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी और ये तो शिरक है। मैंने कहा नहीं, असल में वक्त कम था, मैं उसको मज़ीद बता नहीं सका। मैं कहना ये चाहता था कि कुरान को अली ने इतना समझा, कुरान को अली ने इतना समझा, कुरान के अलूम को इतना जज्ब किया कि कुरान की फिक्र अली की फिक्र हो गई। और फिर अली जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे कुरान बोल रहा। और फिर मैंने उन लोगों को बताया कि आप अली की बात करते हो, अली की बात मत करो। अली के घर में एक कनीज फुज्जा, आम एक कनीज, अली के घर की नौकरानी, अली के घर में झाड़ू देने वाली, वो इतनी आलिमा हो गई कि 25 साल तक उसने कलाम ही नहीं किया। जब उससे किसी ने कोई बात की, घरेलू बात की, वो जब जवाब देती थी कुरान के आयात में जवाब देती थी। एक नौकरानी, एक कनीज इतनी आलिमा हो गई, कुरान की आयात को इतना समझ लिया कि उससे जब भी किसी ने कलाम किया, उससे कोई आम जिंदगी की गुफ्तगू की, वो करती होगी गुफ्तगू, लेकिन वो जब भी गुफ्तगू का जवाब देती थी वो अपनी जुबान से वो कुरान की आयत में जवाब देती थी। तो जब एक कनीज इतना कुरान का इल्म रख सकती है तो उस घर के मालिक जिनकी तरबियत ने उस कनीज को ये मकाम दिला दिया, वो मालिक कितने आलिम होंगे और उनके कलाम में कितनी बड़ी बात होगी। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, और जिस तरह कुरान के बाज़ मानी बहुत बाद में समझ में आते हैं, इस तरह अली की भी बाज़ बातों के मानी बहुत बाद में समझ में आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ कल की तकरीर का एक जुमला आपको याद दिलाता हूँ कि कल की तकरीर में मैंने ये कहा था कि किताब जो है, किताब वो वजूद नबूवत में मौजूद होती है। जब मैंने ये कहा था कि किताब वजूद नबूवत में मौजूद होती है, तो एक तो कुरान है, एक हदीस कुदसी है, और एक वो किताब जिसके बारे में कल मैंने साबित किया कि वो वजूद नबूवत में मौजूद होती है। यानी नबी जब खड़ा है तो वो किताब भी उस खड़े हुए नबी में मौजूद है। जब नबी सो रहा है तो उस सोए हुए नबी के वजूद में वो किताब मौजूद है, और वो किताब नाजिल की अल्लाह ने, और वो उसके वजूद का हिस्सा है। एक बात कहना चाहता हूं कि जिसको नबी कहे कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जिगर भी तो वजूद का हिस्सा है। जिसको नबी कह दे कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे वजूद का हिस्सा है, तो जो वजूद का हिस्सा है, तो वजूद में तो किताब इलाही मौजूद है, तो जो उस वजूद का हिस्सा होगा वो भी तो उस किताब इलाही का कोई पारा होगा, उस किताब इलाही का कोई पारा होगा, उस किताब इलाही की कोई सूरत होगी, उस किताब इलाही की कोई आयत ही होगी। तो इसलिए जो भी वजूद नबूवत से, जो भी नबी के वजूद से, अब आप ये समझते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये वजूद नबी के साथ इनकी वाबस्तगी तो है ना, इनका मुंसलिक होना तो साबित है ना। तो जब वजूद से इनका मुंसलिक होना साबित है, तो उस किताब जो कि किताब इलाहिया है, और वो भी उसी जिस्म का हिस्सा है। जैसे जिस्म में खून रवा है,
جیسے جسم میں خون رواں ہے اسی طرح وہ کتاب بھی رواں ہے، اس جسم کا حصہ ہے۔ جیسے خون کے بغیر جسم نہیں ہوتا اس طرح اس کتاب کے بغیر نبی کا وجود نہیں ہوتا۔ تو اس نبی کے وجود سے جتنے وجود بنے، اس نبی کے وجود سے جتنے وجود بنے وہ اس کتاب کا بھی حصہ ہیں۔ میں اصل میں نور کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی نور یہ بھی نور، نور کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس علم کی بات کر رہا ہوں جو اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اس علم میں امام تو شامل ہیں، امام حسن بھی شامل ہیں، امام حسین بھی شامل ہیں، لیکن آج جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی اس وجود سے اکتساب کیا ہے، اس وجود سے فاطمہ کا وجود بنا۔ چونکہ فاطمہ کا وجود نبی کے وجود سے بنا، اس لیے دونوں وجودوں میں اشتراک کتاب الہی موجود ہے، اور اس کتاب الہی کا جو ہے اشتراک موجود ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کا خلاصہ الحمد ہے تو اس کتاب جو نبی کی کتاب ہے، جو وجود نبی کا حصہ ہے، اس کتاب کا خلاصہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ سارے امام آل فاطمہ ہی ہیں، آل علی ہی ہیں، وہ اسی وجود سے پروان چڑھے، ساری امامت ادھر ہی سے جاری ہوئی، ساری امامت نے شیر فاطمہ سے اپنے لیے زندگی اور حیات تلاش کی۔ تو اس لیے یہ بھی کتاب وجود نبوت کا حصہ ہیں۔ اور اب فاطمہ الزہرا کا چونکہ نام نامی آ گیا تو میں آپ سے ایک بات کہتا چلوں، اس پہ کبھی موقع ملا تو میں پوری تقریر بھی کروں گا۔ ایک بات آج سن لیجئے کہ فاطمہ الزہرا پنجتن پاک میں نقطہ اشتراک ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ سنگم ہیں کہ جہاں یہ 5 تن پاک اپنی پاکیزگی اور عصمت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ فاطمہ کا نور ہے، وہ فاطمہ کا وجود ہے۔ اور یہ فاطمہ الزہرا اس تاریخ اسلام کی سب سے بڑی مظلوم خاتون ہے، بڑی مظلوم خاتون۔ ہر شخص نے امت کے ظلم سہے، ہر امام نے، ہر بزرگ نے، لیکن جتنا ظلم فاطمہ نے سہا کسی نے نہیں سہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کہہ کیا رہا ہوں، یہ وہ مظلوم خاتون ہے کہ جب تک جیتی رہی روتی رہی، جب تک جیتی رہی روتی رہی، اور امت نے رونے بھی نہ دیا، رونے کے بھی ٹائم مقرر کیے، روتی رہی۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس دنیا سے اٹھ گئی تو پھر بھی قرار نصیب نہ ہوا۔ آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے، سید بھی بیٹھے ہو، غیر سید بھی بیٹھے ہو، مومن بیٹھے ہو، آپ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ایک بات پوچھتا ہوں کہ فاطمہ جیسی ماں کیسے آرام سے رہی ہوگی؟ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ جنت میں رہی ہوگی؟ جب حسن کے جنازے پر تیر چل رہے تھے تو فاطمہ کہاں ہوگی؟ جب اولاد فاطمہ پر مظالم ہو رہے تھے تو فاطمہ کہاں ہوگی؟ ایک روایت پڑھتا ہوں جو میرے باپ دادا پڑھا کرتے تھے، پرانے مومن پڑھا کرتے تھے، بس آپ کی توجہ چاہیے، انشاءاللہ بڑا گریہ ہو۔ جب قافلہ سید سادات کا مدینے سے روانہ ہوا، کربلا پہنچا، کربلا میں جو امت نے کرنا تھا کیا۔ اس کے بعد جب بیبیاں کوفہ کے بازاروں سے، شام کے بازاروں سے، یزید کے درباروں سے گزر کر قید خانے میں پہنچی تو بس قید خانے کا ایک منظر پیش کرتا ہوں، قید خانے کا ایک چھوٹا سا منظر پیش کرتا ہوں۔ سکینہ نے ہاتھ جوڑے اور سجاد سے کہا کہ بھیا اگر آپ امام ہو اجازت دو، تو بڑا عرصہ ہو گیا میں نے آسمان کی نیلاہٹ نہیں دیکھی، آسمان کی نیلاہٹ نہیں دیکھی، اگر اجازت ہو تو اس روزنے دیوار سے میں باہر جھانک کر دیکھ لوں۔ سجاد نے کہا بہن دیکھ لو۔ اب
सकीना ने ईंटें रखी, छोटा सा रोज़न दीवार है, उसमें से बाहर देखा, आसमान की नीलाहट नजर आई, शाम का वक्त था, देखा परिंदों की डारों की डारें चलती हुई जा रही। सकीना ने पूछा, भैया ये परिंदों की डारें कहां जा रही हैं? कहां जा रही हैं? इमाम ने फरमाया, सकीना ये सब परिंदे अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं, अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बेख्तियार सकीना के मुंह से निकला कि भैया कभी हम भी अपने घरों को जाएंगे। इमाम ने ठंडी सांस भरी और कहा, सब अपने घरों को जाएंगे सकीना, तुम घर को नहीं जा सकती, तुम्हारी कब्र यहीं बनेगी। अब ये गुफ्तगू हो रही थी कि बाहर दक्कुल बाब हुआ, इमाम बाहर निकले, एक चौकीदार खड़ा था। चौकीदार ने कहा, इमाम आप जब कैदखाने में अंदर कमरे में आते हो, बाहर के बरामदे से, दालान से, तो एक काम कर लिया करो, जब कोठड़ियों में बंद होते हो तो अपने बीबियों को गिन लिया करो, क्योंकि एक बीबी आपकी रोजाना बाहर रह जाती है। इमाम ने कहा, हमारी तो कोई बीबी बाहर नहीं होती, हमारी बीबियां तो अंदर होती हैं। उसने कहा, नहीं इमाम, एक बीबी बाहर होती है, जब अंधेरा हो जाता है तो वो बाहर दालान में आ जाती है और दालान में आकर जोर जोर से चीख चीख कर रोती है और कहती है कि हुसैन तुम्हारा लावारिस मारे जाने का बड़ा अफसोस है, बैन करती है। इमाम ने कहा कि जब वो आए तो मुझे बताना। चौकीदार ने कहा, पहरेदार ने कहा, वो बाहर आई बैठी है, आके देख लो। इमाम गैरत वाला, उसने कहा पराई अजनबी औरत है। ज़ैनब को कहा, बहन आगे आगे तुम चलो, क्योंकि औरत है, तुम बात करना, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। ज़ैनब आगे आगे, इमाम जरा हट के दूर खड़े हो गए। ज़ैनब ने जाके देखा कि एक औरत है जिसका सफेद सर है, सर खोल कर बैन कर रही है। तो ज़ैनब ने कहा कि इस परदेश में, इस मुसाफरी में, इस दुख में, इस गम में, ए खातून तू कौन है जो मुझ गरीब पर एहसान करती है, मेरे गरीब भाई को मातम करती है। तो उस औरत ने पलट के देखा, अपने बालों को हटाया, अपने पहलू पर हाथ रखा और खड़ी हुई, और खड़ी होके कहा कि बेटी मुझे पहचानो, मैं ज़हरा हूं, मैं ज़हरा हूं। जब बेटी ने देखा, आप तो सब हसास लोग हैं, जब बेटी दुखों की मारी बेटी अपनी माँ से मुद्दतों बाद मिले तो उन्होंने क्या हाल अहवाल तो अपना बांटना था। तो उसने शिकायत की ज़ैनब ने अपनी माँ से कि अम्मा अब आई हो, अम्मा अब आई हो कि जब अब्बास के बाजू कता हो गए, अब आई हो जब अली असगर शहीद हो गया, अब आई हो। तो ज़हरा ने कहा, बेटी मुझे ताने न दो, जब से तुमने मदीना छोड़ा मैंने भी जन्नतुल बकी छोड़ दी है। तुम तो ऊंटों पे सवार रही, मैं पैदल रेगजारों में, करबला में, हर जगह मैं पैदल घूमती रही। तो यकदम ज़ैनब के हाथ, ज़ैनब की निगाह अपनी माँ के हाथों पर पड़ी, हाथों के पुष्ट पर जख्म के निशान थे। बेटी ने कहा, अम्मा ये जख्म के निशान कैसे हैं? तो ज़हरा ने कहा कि तुम तो 70 कदम दूर खैमे में खड़ी थी, लेकिन मैं उस वक्त वहीं मौजूद थी जब शिमर इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चला रहा था। मैं माँ थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, बार बार खंजर के नीचे में हाथ दे देती थी। ये जख्म हुए हैं और मैं कयामत के रोज खुदा के सामने अपने इन जख्मी हाथों के साथ जाऊंगी और खुदा से मैं शिकायत करूंगी कि उसकी उम्मत ने मेरी औलाद पर यह जुल्म किया। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। इल्तमास से दुआ, या इलाही हमारी इस छोटी सी मजलिस को कबूल फरमा। या इलाही जो मोमिनीन यहाँ हाजिर हैं, गैर हाजिर हैं, उनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर। या इलाही जो बीमार हैं उनको सदका बीमार करबला का शिफायाब कर। या इलाही जो बे औलाद हैं उन्हें सदका अली असगर का औलाद अता कर। या इलाही जो परदेश में हैं उन्हें अपने वतन की मुलाजमत दिला। या इलाही जो मुलाजिम हैं उनको तरक्की दर्जात दिला। या इलाही जो कारोबारी लोग हैं उनके रिस्क में कुशाइश कर, उनके कारोबार में तरक्की दे। या इलाही जो ज़मींदार हैं उनके फसलों में बरकत दे। या इलाही जिस अंजुमन ने और जिन शुरका ने इस मजलिस का इंतज़ाम किया है, एहतमाम किया है, उनकी दिली मुरादें पूरी कर। जो इस यहाँ बुजुर्ग हैं उनको ईमान के साथ यहाँ रख और अगले जहान सुरखरू कर। या इलाही जो यहाँ मोमिनीन हैं उनको अगले जहान यौम हशर अपने इमाम के साथ उठा।